Hey boys and girls and people and anyone who's watching me right now. Thank you for coming. Hi, I'm Shivana Shukla, a second year MBBS student at a private medical college which is Saraswati Institute of Medical Sciences, Harvard. तो कैसी लग रही हूँ मैं? Or I should ask, senior लग रही हूँ मैं? Because today I want you to consider me as a senior and take my advice seriously. Well, you all know कि मुझे ज्ञान देने का बहुत शौक है. But you know, I never said anything about NEET preparation. कि कैसे नीट में पढ़ना है, क्या करना है, एग्जाम कैसे देना है. आई नेवर सेड एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज मैं खुद एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही हूँ एंड आई डू नॉट कंसिडर माई सेल्फ qualified enough to give you advices about NEET preparation. But now, when I have finally passed my first year of MBBS with quite decent marks, I think that I am qualified to guide you somehow. So being a friendly senior / survivor of first year of MBBS, I'm here to tell you about the books and resources that you'll need for passing / acing your first year of MBBS. And also, I'll be telling you how I managed to get a distinction in physiology without losing my mental stability. Okay, maybe I lost a little bit, but इतना तो चलता है MBBS में. तो सबसे पहले तो let me clear this myth. MBBS में कोई perfect book नहीं होती. जो बुक तुम्हारे लिए सही है, जिससे पढ़ के तुम्हारे नंबर आ रहे हैं, जो तुम्हें समझ आ रही है, वही तुम्हारे लिए परफेक्ट होती है. एंड ऑल्सो यू शुड नॉट बी डूइंग जो जैसे मैंने किया तुम्हें भी वो करना है. इट्स नॉट सम कंपल्शन. बिल्कुल मत करो ऐसा. जस्ट इनफैक्ट तुम बहुत अच्छा नंबर लाओ, गोल्ड मेडल ले आओ. ओके, सो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट dreadful subject of MBBS. Well, yes, you guessed it right. Anatomy. It is difficult. Agree, completely agree. But honestly, as compared to physiology and biochemistry, जो पूरे के पूरे theoretical subjects हैं, उनके comparison में anatomy is actually fun because of that dissection part, because of the bones and soft part and cadaver. इन सब की वजह से anatomy is quite interesting अगर तुम मन से पढ़ो तो. So about the textbooks, the main book is B.T. Chaurasia and yes, मैंने भी वही पढ़ी थी completely, totally, and वो बहुत अच्छी book है, especially about the flow charts, diagrams and in fact the color coding of origin and insertion of muscles. So BDC बहुत अच्छी book है. Apart from that, Vishram Singh is also quite good book. In fact, उसके diagrams BDC से भी ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो you can definitely go for it. There's also this Grey's Anatomy for students. If you are aiming for distinction, if you are aiming for gold medal, then you can study at your own risk because मैंने वो book कभी नहीं पढ़ी है, तो I have no idea about it. You can do this thing that study BDC completely. Refer Vishram Singh for diagrams. It's amazing. Apart from this, anatomy में हिस्टो और एम्ब्रियो भी होता है, तो यू कैन रेफर इंद्रबीर सिंग्स हिस्टो एंड एम्ब्रियो, और मे बी यू कैन ऑल्सो स्टडी एम्ब्रियोलॉजी फ्रॉम लैंगमैन विच इज अ स्टैंडर्ड बुक फॉर एम्ब्रियो. तो इफ यू वांट यू कैन रीड दैट, बट मेक श्योर कि पहले से पढ़ लो. ये नहीं कि एग्जाम के 2 दिन पहले लैंगमैन उठा के बैठे हैं, नहीं समझ आएगा कुछ भी. तो मेक श्योर यू स्टडी रेगुलरली और at least not one day before exam. For the better understanding, you can use that clinical anatomy by Snell. Also, you can refer to Atlas, Nedder's का Atlas. I won't recommend to buy it, but you can at least have a PDF of it. And actually इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है. It contains diagrams and वो समझने के लिए बहुत अच्छा है, but just समझने के लिए. Exam के point of view से you'll have to read BDC और Vishram Singh. About the online resources, you can refer to Osmosis के videos, Ken Hub, Ninja Nerd and जौहरी की videos. If you are short on time, वो एग्जाम से कुछ टाइम पहले के लिए है. Especially the bone. If you are like बस पास होना है, then refer to जौहरी की videos. They are actually very helpful when you are short on time. And also you can refer to Vivaverse of Anatomy. And also you can use that 3D app, 3D Atlas of Anatomy. It's amazing. You know, when people say that anatomy is all about visualizing, they are right. Because anatomy is something जो तुम आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे, याद नहीं रहेगी. But once you see the images, you completely understand कि ये nerve कहाँ से निकल रही है, कहाँ पे जा रही है, ये muscle का origin insertion क्या है, रटने से याद नहीं होता है. But if you once see them in cadaver, in 3D apps, तो तुम्हें याद रहता है. I personally did this too. So I would recommend you too. So a quick summary for anatomy I did and what I would suggest for the mediocre students and a little above than mediocre. Study from BDC पढ़ो, पूरी तरह से अच्छे से पढ़ो. विश्राम सिंह के डायग्राम्स यू कैन रेफर. नहीं तो BDC के डायग्राम्स भी इतने बुरे नहीं होते. मैंने किया था सारे BDC के डायग्राम्स, तो इतने बुरे नहीं है ऑफ कोर्स, बट यू कैन रेफर टू विश्राम सिंह के डायग्राम्स, या फिर विश्राम सिंह तुम पूरा पढ़ सकते हो. लैंगमैन
अगर तुम्हारा मन हो एम्ब्रियो के लिए, लाइक अगर तुम्हें अपनी एम्ब्रियो करनी है, ऑब्वियसली टीचर्स वुड सजेस्ट, आई वुड सजेस्ट टू लैंगमन पढ़ो. But if you are short on time, you can refer to Inderveer Singh's or Vishram Singh's embryology as well. ठीक है. बट एम्ब्रियो इज नॉट समथिंग जो तुम एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ सकते हो, तो ऐसा मत करना. हिस्टो के लिए भी इंदरवीर सिंह यू कैन रेफर, एंड हिस्टो की स्लाइड्स अच्छे से देखो. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड विजुअलाइजिंग यू कैन रेफर स्नेल्स बुक कनिंघम डाइसेक्टर एंड नेटर का एटलस, एटलीस्ट द पीडीएफ. आई थिंक फॉर एनाटॉमी, यस, दीज आर द बुक्स एंड रिसोर्सेज व्हिच आई यूज्ड. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री में मैंने कंप्लीटली वासुदेवन पढ़ी थी एंड जाम्बलकर के नोट्स एग्जाम के 2 दिन पहले. तो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू टू डू द सेम. जो भी स्पेशली जो रिएक्शंस हैं, जो साइकिल्स हैं, जो फ्लो चार्ट्स हैं वासुदेवन में, दे आर अमेजिंग. तो उसे अच्छे से करो. एंड इफ यू आर वेरी शॉर्ट ऑन टाइम, जब कुछ ना मिले, जाम्बलकर सर बट एट द लास्ट मिनट. ओके, फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर आई वुड सजेस्ट स्टडी वासुदेवन. मैंने वही पढ़ी थी, बट यू कैन ऑल्सो रेफर टू द स्टैंडर्ड बुक्स जो कि हार्पर है, हार्पर, लिपिनकॉट, दे आर अमेजिंग बुक्स. एंड ऑल्सो देयर इज सत्यनारायण. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मतलब आई वुड नॉट रिकमेंड, क्योंकि सत्यनारायण इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. वासुदेवन उससे थोड़ी ज्यादा टफ है, बट अच्छी है. सो इन द हायरार्की वाइज देयर इज लिपिनकॉट एंड हार्पर, जो इंटरनेशनल बुक्स हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, यू कैन रेफर टू देम. उसके बाद देयर इज वासुदेवन, अमेजिंग, मैंने पढ़ी है वो. उसके बाद देयर इज सत्यनारायण, एंड उसके बाद देयर इज जाम्बलकर के नोट्स. About the video resources, when you're reading Jabalkar notes, then you should watch his videos only. There's also the Dr. Najib के lectures, बहुत अच्छे हैं वो, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं वो. Ninja Nerd के भी videos हैं, I guess. In biochemistry, you need to practice the flow charts, the cycles, the reactions again and again, because you tend to forget them very easily. तो a quick summary of biochemistry, especially for the mediocre people, जिन्हें like अच्छे नंबर से पास होना है, तो study वासुदेवन throughout the year, make your own notes out of it, and you can take help from जाम्बलकर के notes. जो ऐसे topics हैं जो वासुदेवन से नहीं समझ आ रहे हैं या जो बहुत difficult हैं, होता है हमें सब कुछ समझ नहीं आता, तो फिर read it from जाम्बलकर के notes. And most importantly, I would suggest make your own notes. अपने notes अच्छा कुछ नहीं होता. And notes को इस तरह से लिखो like how you are going to present that particular topic in the examination. Exam time में exam oriented पढ़ो, but throughout the year study to become a good doctor, study for gaining knowledge. And now the subject which has now become the love of my life, physiology. तो physiology is a kind of conceptual subject. Like अगर एक बार अच्छे से समझ लिए तो it's not difficult to remember that. It's not like anatomy आज पढ़े कल भूल गए. It's not like कोई biochemistry की peroxidation की reaction जो आज याद किए कल भूल गए. Physiology is very conceptual. So physiology रटो मत, बिल्कुल नहीं. Physiology समझो. Okay, about the books, there is this very standard international book, Guyton and Hall. It's amazing, but it's quite vast. So again, if you are someone जैसे gold medal लाना है, जैसे distinction लाना है, just study from Guyton. But I personally did not study from Guyton. मैंने 1-2 topics पढ़े थे बस Guyton से, जो मुझे like बहुत important लगे, like shock. Also because उसमें मेरा seminar था. खैर, I study completely from AK Jain. Now about AK Jain, there is this thing कि AK Jain में समझ नहीं आता. AK Jain is more like NCERT, जिसमें बहुत सारी चीजें दी हुई हैं बट कुछ भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है. तो I would say for understanding, GK Pal is the best book for the mediocre people. Again, oh my god, I believe so much in mediocrity. So if you are someone जिसे distinction लाना है, जिसे gold medal लाना है in physiology, go for Guyton. Guyton पढ़ो, बट एग्जाम से पहले ऑफ कोर्स यू वोंट बी एबल टू स्टडी. या फिर Guyton पढ़ के अपने नोट्स बनाओ और फिर लास्ट मोमेंट पे नोट्स पढ़ो, बिकॉज लास्ट मिनट में ना एग्जाम से एक दिन पहले यू विल नॉट बी एबल टू रिवाइज एवरीथिंग. यू विल नॉट बी एबल टू रीड बुक, नहीं पढ़ सकते. तो उसके लिए तुम्हें कंसाइज रिसोर्स चाहिए, बहुत कंसाइज, लाइक एक्सट्रीमली कंसाइज. तो उसके लिए या तो खुद के नोट्स बनाओ या फिर ऐसी बुक्स पढ़ो जिनमें थोड़ा कंसाइज ऑलरेडी दिया हुआ है, लाइक AK Jain. AK Jain इज गुड फॉर राइटिंग द एग्जाम्स. उसमें बहुत क्रिस्प एंड कंसाइज चीजें दी हुई हैं ऑलरेडी, तो यू कैन रेफर फॉर पासिंग द एग्जाम्स. एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक्स, just read GK Pal. It's amazing. Other than that, you can also refer to Ganong's book, but I personally have no idea about it क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा है उसे. And also you can watch Preeti ma'am's lecture. If you're reading Guyton, then you can watch Dr. Asif Qureshi's videos. वो Guyton को read करके समझा देते हैं. So if you're reading Guyton, then you can watch his lectures. Apart from that, there is Ninja Nerd,
amazing. Also there is Dr. Najeeb's lectures. At least कुछ तो पढ़ना उनसे, like जो बहुत important topics है ना. Just do one thing ना, जो बहुत अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो बहुत important topics हैं, जो long answer questions, जो short answer questions, like जो बहुत high yielding topics है ना, उनको अच्छे से करो. Like उसे अच्छे से समझो, उसे अच्छे से prepare करो. छोटे मोटे topics हैं, you can study them from AK Jain or from simply any other book. So a quick summary about physiology. What I did and what I would suggest, do this thing. जो बहुत high yielding, बहुत important topics हैं, उन्हें guidance से पढ़ के समझ लो, ठीक है. जो थोड़े उससे कम important topics हैं, read them and conceptually understand them from GK Pal. And for the exam point of view, read AK Jain. I know it's too much. And if you are someone जैसे सिर्फ पास होना है, read AK Jain. It's enough. And बाकी तो flow charts and diagrams will do the miracle. Just like they did in my case. So about the distinction, देखो honestly कोई magic नहीं होता. Though I still feel that it's a miracle, but honestly नहीं होता ऐसा कोई magic. It's about how you studied the whole year. It's all about your conduct and behavior. So about the distinction, I would say मैंने कभी distinction के लिए नहीं पढ़ा. मैंने बस पढ़ा just because I had to, obviously, for understanding the topics. And exam time में तो honestly बस pass होने के लिए. So distinction was like beyond my reach. मैंने ऐसा सोचा था. But now I got one that, then now I feel that I was worthy of it. But I would say that don't study कि मुझे gold medal ही लाना है. Don't study कि मुझे distinction ही लाना है. Just study. Enjoy the process of studying. Okay, and make a habit of studying. Because जो field तुमने choose की है ना, उसमें तुम बस एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के अगर पास होना चाहते हो ना, तो फिर रिपोर्ट हो सकते हो. I'm not saying कि नहीं हो सकते हो, but मजा नहीं है इसमें कुछ. मजा is in the struggle. Just do the experiment. हर चीज एक बार एटलीस्ट पढ़ के देखो, खुद समझो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है. Because as I said earlier, there is no perfect book in MBBS. There is no perfect resource. There is no perfect timetable. So what works for you, it's the best. See, मैं कोई टॉपर नहीं हूँ, मैं बस एक mediocre हूँ. मैं भी खुद को एक mediocre ही मानती हूँ. Although I have scored a distinction, actually it's just 75%. तो मुझे नहीं पता कि उसे distinction कहते भी हैं या नहीं. I think कहते हैं, but अगर नहीं कहते होंगे so मुझ पे ये एलिगेशंस मत लगाना कि नहीं ये डिस्टिंक्शन ना लाके भी ऐसे झूठ बोल रही है. बिकॉज आई हैव गॉट एग्जैक्ट 75% इन फिजियोलॉजी. तो मेरी बात मानना है या नहीं है, रियली अप टू यू. सो लेट मी गिव यू सम एक्स्ट्रा ज्ञान बिकॉज आई लव डूइंग दिस थिंग. ओके, तो सबसे पहले खुद से ये क्वेश्चन करो दैट इन विच कैटेगरी यू आर कीपिंग योरसेल्फ. तुम्हें गोल्ड मेडलिस्ट टॉपर बनना है, तुम्हें सिर्फ एग्जाम पास करना है, तुम्हें एक डिसेंट स्कोर ला के एग्जाम पास करना है, लाइक वाओ हाँ ये पढ़ने वाली है, लाइक अच्छी है या अच्छा है. ओके, सो आफ्टर कीपिंग योरसेल्फ उसके अकॉर्डिंग बुक्स चूज करो, पढ़ के देखो. अगर नहीं समझ में आ रहा है पढ़ के देखो, 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर तुम्हें कुछ समझ में आ जाएगा. अगर तुम्हारे बस की है पढ़ो, नहीं है इट्स ओके. ऐसा कुछ नहीं है कि गाइडन, अगर कोई गाइडन नहीं पढ़ रहा है तो वो फिजियो में पास नहीं हो सकता. मैंने नहीं पढ़ी गाइडन, बट हियर आई एम. सो आई एम नॉट फ्लेक्सिंग, आई एम जस्ट टेलिंग दैट एक्सप्लोर कि तुम्हारे लिए क्या वर्क कर रहा है एंड जस्ट गो फॉर इट. ओके, सो आफ्टर कीपिंग उसके अकॉर्डिंग अपने बुक्स डिसाइड करो, ठीक है. अपने नोट्स बनाओ, उसके अकॉर्डिंग नोट्स एटलीस्ट ऐसे बनाओ जिसमें डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स ये सब ज्यादा हो. Because you are Gen Z kids, yaar. You also know the mindset of examiner. Okay, so quick pointers which you should keep in mind. Firstly, don't study everything. अपनी यूनिवर्सिटी देखो, बट उसके PYQs देखो, उसके अकॉर्डिंग पढ़ो, ठीक है. जो टॉपिक तुम्हारी यूनिवर्सिटी का फेवरेट टॉपिक है उससे ज्यादा अच्छे से पढ़ो. सिंपल. You need not to study each and everything. और इतना हो भी नहीं पाएगा, क्या फायदा. These are for the exam point of view things, okay? पूरे साल हल फालतू चीज पढ़ो. Second, make flowcharts and diagrams everywhere. Like तुम्हें कुछ नहीं आता, just make a diagram. I still remember in physiology in one of the tests some question related to countercurrent mechanism. Exactly मुझे वो question याद नहीं है and exactly मुझे उसका आंसर नहीं आता था. What I did, I made a nephron. I made a picture of nephron. उसमें मुझे 2 नंबर मिले, like 5 में से 2 नंबर मिले. I was like so happy. So what I'm telling is कुछ नहीं आता, make flowchart diagram कैसा भी, ठीक है. पेपर खाली मत छोड़ना, जितना आता है उतना लिखो, अच्छे से लिखो, थोड़ा पेज भर के लिखो, एग्जामिनर को लगे कि हाँ तुम्हें आता है, ठीक है. Third thing, study with emotions, not with pressure. I mean, what I'm saying is कि ऐसा नहीं कि एग्जाम है, कल एग्जाम है तो हम प्रेशर में पढ़ रहे हैं, नहीं ना. Try to study मन से, because हम मन से कोई काम करते हैं तो वो काम अच्छा होता है. Fourth point, don't just simply read, understand, ठीक है. Because most of the time what we did, I did the same thing यार, come on. इसलिए बोल रही हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से कि just don't mug up everything, you can't. Fifth point, try to do group study, especially about those things जो बहुत difficult लग रहे हो तुम्हें. ऐसी चीजें ग्रुप में पढ़ने की कोशिश करो, या किसी को पढ़ाने की कोशिश करो, या किसी और से पढ़ने की कोशिश करो. तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें एक बार में नहीं समझ में आती हैं और हमें खुद से नहीं समझ आती हैं, और अगर हम खुद से समझ भी लेते हैं तो भी हम भूल जाते हैं. तो इससे बेटर है कि सबके साथ पढ़ो. ऐसा करोगे पूरा ग्रुप टॉपर बन जाए. इट्स सो फन. एंड लास्टली पॉइंट नंबर, आई डोंट नो, अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो.
इन मेडिकल फील्ड स्पेशली। ये नहीं कि नंबर कमा रहे हैं तो डिप्रेशन में ही चले गए कि अब मैं क्या करूं, नहीं, डजंट मैटर। आई नो आई एम टेकिंग इट अ बिट टू फार, बट ऐसा होता है, मेंटल ब्रेकडाउन्स होते हैं स्पेशली ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम्स, जब कुछ समझ नहीं आता, जब हम कितना भी पढ़ रहे होते हैं पर फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है। हम जब इतनी मेहनत करके एग्जाम देने जाते हैं फिर भी एग्जाम में वो क्वेश्चन पेपर में एक भी क्वेश्चन फेमिलियर नहीं लगता, तब हमें एक्चुअल में बुरा लगता है। बट इट डजंट मीन दैट यू हैवंट वर्कड हार्ड। इसीलिए पहले से मेहनत करते रहो ताकि लास्ट में तुम्हें ये रिग्रेट ना हो कि यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं था। अगर क्वेश्चन कुछ अलग सा आ भी जाए ना तो तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस रहे, यार मुझे अगर नहीं आता तो किसी को नहीं आता होगा, ये क्वेश्चन है टफ। सो यस, आई थिंक इट्स इनफ विद द मोटिवेशन थिंग। बट मोर थिंग्स आई विल मेक सम अदर वीडियो। बहुत संडे अभी तो। आई होप कि ये सारी बातें हेल्पफुल हों फॉर you, for all the first year MBBS students. So thank you for watching this video. Now I'll meet you in next Sunday doing some other crazy stuff, or maybe simply talking to the camera. Bye, and take very good care of yourself and keep your sense of humor alive.